So today we are covering Indian writing in English, that is English literature, Indian literature of our UGC NET paper 2 of English. So this is the core section that is very important for you to know, and that Indian literature in our English. So let me clarify you, this series is for the rapid revision series, and that you can go through the whole one and have an overview of all the things and know the keywords, so that you can easily solve the MCQ and attempt with good marks. So I have also covered various topics of paper 1 also in the series. You can check out the channel and know through that. So let's start with the Indian writing in English. I have compiled the keywords, as you all know if you are familiar with my channel. So we have early pioneers of Indian literature, like from 1800s to 1930s, like when Indian started to write in English. In this, firstly we have Raja Ram Mohan Roy, which is a key figure you all should know about. Raja Ram Mohan Roy is a social reformer who wrote in English for against sati and known as father of Indian Renaissance. This is the thing you have to remember. Then we have Henry Louis Vivian Desrosiers, who's an Anglo-Indian poet, associated with the young Bengal movement to India, my native land, early patriotic poetry in the key works, and died super young at 22. Next we have Bankim Chand Chatterjee. You all know, I guess. So keywords include Anand Math, Bande Mataram came from here, wrote mainly in Bengali but influenced English writers. Next we have Rabindranath Tagore, जिनके बारे में हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से. फर्स्ट नॉन यूरोपियन नॉवल प्राइज विनर जो कि रह चुके हैं, ये बात मत भूलना. गीतांजलि जो कि सॉन्ग ऑफरिंग्स, द वर्क दैट वॉन हिम नॉवल इज दिस. द होम इन द वर्ल्ड, गोरा. He is a poet, playwright, novelist, painter, composer, wrote in Bengali, translated to English. Founded Vishwa Bharati University. Okay? Founded Vishwa Bharati University. Themes is humanism, spirituality, nature and identity, Indian identity. Okay? Then we have Sarojini Naidu, the Nightingale of India. अगर नहीं पता तो भाई कहाँ रहते हो? सरोजनी नायडू, जिनके बारे में नहीं भूलना है. टाइमलाइन याद रख सको तो अच्छी बात है. लाइक 1879 to 1949, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, द गोल्डन थ्रेशोल्ड of 1905, the word of time, lyric poetry with Indian themes, first woman governor of UP, and style includes romantic, musical, colorful imagery. Then we have Toru Dutt, the first Indian movement poet in English. A sheaf gleaned in French fields, died at 21, which is a tragic moment in itself. Then we have the big three from 1930s to 1980s, Holy Trinity of Indian fiction. This is very important, the Holy Trinity of Indian fiction. And as we have recently covered the cultural studies, I have told Holy Trinity of post-colonial there. So comment down what's the Holy Trinity, who is the member of Holy Trinity of post-colonial period. So here we have the Holy Trinity of Indian fiction, like Mulk Raj Anand, R.K. Narayan, and guess who? Yes, Raja Rao. So here we have Mulk Raj Anand from 1905 to 2004, the social reformer. इनके मेजर वर्क हमको बस ऐसे ओवरव्यू रखना है, हमको कीवर्ड्स मालूम होना चाहिए. मेजर वर्क्स की बात हम कर रहे हैं तो हमारे पास है अनटचेबल, कूली, टू लीव्स एंड अ वर्ड, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस. अनटचेबल में क्या बात हो रही है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की हो रही है. कुली में जो मोनोस की ट्रेजिक लाइफ हो रही है, अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार पढ़ो. थीम्स है इसमें कास्ट सिस्टम. अगर
थीम्स की बात हम कर रहे हैं तो मुल्क राज आनंद एसोसिएटेड हैं कास्ट सिस्टम से, पॉवर्टी से, अनटचेबिलिटी से, सोशल इनजस्टिस से। स्टाइल क्या है? रियलिस्टिक है, सिंपैथेटिक है टू लोअर क्लास, इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी एंड मार्क्स। आई राइट टू चेंज सोसाइटी इज द कोट एसोसिएटेड विद मुल्क राज आनंद। अगर आपको ये थीम्स नहीं याद हो रही हैं कि कौन किसकी थीम से रिलेटेड है तो चेक आउट द रीसेंट शॉर्ट्स आई हैव शेयर्ड। उसमें मैंने पूरा एक टेबल शेयर किया है जिसमें अपने इंडियन राइटर्स किन किन थीम से रिलेटेड हैं। वो बहुत ही ऐसा है कि आप 30 सेकंड में याद कर लोगे सब कुछ, समझ रहे हो? बस एक बार चेक करो आप। And then we have R.K. Narayan. R.K. Narayan, the gentle storyteller, created Malgudi. Malgudi is the most famous fictional town in Indian literature. इनके मेजर वर्क्स की अगर हम बात करें तो स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, द गाइड अगर नहीं पढ़ा है तो भाई पढ़ो। जो इसमें राजू था वो टूर गाइड से स्पिरिचुअल गुरु बन गया था। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द पेंटर ऑफ साइन, मालगुडी डेज एंड द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। ये चीज़ें ऐसे हैं कि ऐसे टिप्स पे रहे हैं, समझ रहे हो? स्टाइल सिंपल, जेंटल ह्यूमर, एवरीडे लाइफ, नो बिग पॉलिटिकल स्टेटमेंट, जस्ट इंडियन लाइफ। ग्राहम ग्रीन वॉज हिज फ्रेंड एंड मेंटर। थीम्स लाइक मिडिल क्लास लाइफ, ट्रेडिशन, इनकी थीम से याद कर लो भाई। मिडिल क्लास लाइफ, ट्रेडिशन, मॉडर्निटी, ह्यूमन नेचर। ठीक है, आ रहा है ना? देन वी हैव राजा राव whose timeline is like 1908 to 2006, द फिलोसफिकल वन। ये कौन है? फिलोसफिकल वन। ऊपर जो हम पढ़ रहे थे R.K. नारायण, वो कौन है? जेंटल स्टोरी टेलर। और मुल्क राजा आनंद कौन है? सोशल रिफॉर्मर। तो इन तीन से क्या बन रही है? होली ट्रिनिटी। इनके मेजर वर्क्स की बात करें तो कांथापुरा अगेन वेरी फेमस वर्क, पढ़ो। विलेज रिस्पॉन्स टू गांधी मूवमेंट। स्थल पुराण स्टाइल में है, विलेज स्टील टेलिंग में है। द सर्पेंट एंड द रोप एंड द कैट एंड द शेक्सपियर। ये भी पढ़ सकते हो। मतलब पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो, पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, है ना? स्टाइल की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटल स्टाइल है, यूजेस इंडियन नैरेटिव टेक्निक्स, हैवी ऑन फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी। फेमस प्रीफेस टू कंथापुरा अबाउट राइटिंग इन इंग्लिश। थीम्स अगर हम बात करें तो इंडियन फिलोसफी है, स्पिरिचुअलिटी है, ट्रेडिशन है। अगर हम कोई कंपैरिजन करें इन तीनों में तो मुल्क राज आनंद सोशल प्रॉब्लम से डील कर रहे थे, एंग्री एट इनजस्टिस। नारायण मिडिल क्लास लाइफ, जेंटल ऑब्जर्वर। राजा राव इज स्पिरिचुअलिटी एंड इंडियन फिलोसफी। दीज आर द कीवर्ड्स जो भाई तुमको भी जब तुम समझोगे ना इसकी डेप्थ, तब तुमको लगेगा कि भाई क्या मिल गया। देन वी हैव पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस एरा। पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस एरा की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें खुशवंत सिंह, ये देख रहे हो जितने स्टार ज़्यादा हैं उतना समझ लो कि उतना तुमको नहीं भूलना है। खुशवंत सिंह लाइक ट्रेन टू पाकिस्तान, पार्टीशन, वायलेंस, ह्यूमनिस्टिक, दिल्ली, अ नॉवल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली, द कंपनी ऑफ वुमेन, नोन फॉर ह्यूमर, सटायर, जर्नलिज्म, स्ट्रेट टॉकिंग, नो बियर स्टाइल। खुशवंत सिंह याद रहेंगे, ट्रेन टू पाकिस्तान, दिल्ली, द कंपनी ऑफ वुमेन, ये तीन तो याद ही है। देन कमला मरकांडिया, बिहाव इन विच नेक्टर इन अ सीव, ये याद रख लो भाई 1954 की। रूरल पॉवर्टी, रुकमनी स्ट्रगल्स हैं और साइलेंस ऑफ डिज़ायर है। फेमिनिस्ट थीम्स हैं और रूरल इंडिया है। मनोहर मलगोनर की बात करें तो अ बेंड इन द गंगेज, पार्टीशन की बात हो रही है, हिस्टोरिकल फिक्शन है। देन वी हैव पोइट्री जाइंट्स इन विच वी हैव निज़म इस्किल, जिनको मत भूलना, फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन पोइट्री, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद की जो पोइट्री है इंडियन पोइट्री उसके फादर हैं ये। इनकी मेजर पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इंटरप्राइज, द पेट्रियट, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टी.एस, द इंडियन इंग्लिश ह्यूमर। ये जब पढ़ोगे तब तुम्हें लगेगा कि इन्होंने कैसे इंडियन इंग्लिश को ह्यूमराइज किया है, सटायर किया है ना। फिलॉसफी स्टाइल इनका आयरनिक था, इतना आयरनिक था जब पढ़ोगे तब जानोगे इनको। आयरनिक कन्वर्सेशन, अर्बन, मुंबई बेस्ड पोइट्री, जोइस इंडियन पर्सपेक्टिव, और थीम्स वर अर्बन एलियनेशन, आइडेंटिटी, इंडियन रियलिटी। ए के रामानुजन,
यस, ए के रामानुजन जो पोइट थे, स्कॉलर थे, ट्रांसलेटर थे, इन्होंने द स्ट्राइड्स रिलेशन ऑफ मदर्स अमंग अदर थिंग्स ट्रांसलेटेड कन्नड़ पोइट्री। थीम्स इनकी थी फैमिली ट्रेडिशन, बाइलिंगुअल एक्सपीरियंस, इनसाइड आउटसाइडर। कमला दास की अगर हम बात करें, इनको जानते ही होंगे और इनको भूलने वाली कोई बात ही नहीं है। कमला दास लाइक द बोल्ड कन्वेंशनल पोएट। इनकी अगर ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो वो है माई स्टोरी, सुपर कॉन्ट्रोवर्सियल। समर इन कैलकटा को मत भूलो, द डिसेंडेंट्स, एन इंट्रोडक्शन, आई एम इंडियन वेरी ब्राउन। कन्वेंशनल पोइट्री अबाउट लव सेक्स मैरिज, रोट इन इंग्लिश एंड मलयालम एज माधवी कुट्टी। ये जो है, ये जो हाईलाइट कर रही हूँ ना, वो तो ऐसा समझ लो कि बस बिल्कुल नहीं भूलना है। थीम्स आर फीमेल सेक्सुअलिटी, मैरिज आइडेंटिटी, फ्रैंकनेस, नो फिल्टर, टोटली हॉनेस्ट। ये जो बात सुन रहे हो ना, नो फिल्टर, टोटली हॉनेस्ट, ये जब तुम राइटिंग पढ़ोगे, ये लाइक एन इंट्रोडक्शन भी पढ़ लोगे ना, तब समझ जाओगे। जयंत महापात्रा, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। लाइक इनकी अगर तुम केवल हंगर ही पढ़ लोगे ना, हंगर बाय जयंत महापात्रा, तुमको समझ आ जाएगा हु इज ही इज। इनका रिलेशनशिप, उड़िया कल्चर एंड इंग्लिश, डार्क और इंट्रोस्पेक्टिव। इनकी प्लीज़ अगर तुम पे थोड़ा सा भी टाइम हो तो चाहे एग्ज़ाम के बाद तुम इनकी हंगर पढ़ना, अगर अभी तक तुमने ना पढ़ी हो, वैसे तो पढ़ी ही होगी। डॉम मोरेस, फर्स्ट इंडियन टू विन हॉथरोडन प्राइज, अ बिगनिंग। Then we have Keki and Naruwala, the keeper of the dead, that deals with violence in history. Then we have women's voices like Anita Desai, इनको मत भूलना। women's voices में अनीता देसाई को मत भूलना। Cry the Peacock, Fire on the Mountain, Clear Light of Day, In Custody, Fasting Feasting, 3 times Booker shortlisted, 3 टाइम शॉर्टलिस्ट हुई थी बुकर के लिए, है ना। क्राई द पिकॉक में क्या है, माया की मेडनेस, साइकोलॉजिकल से डील कर रही है। फायर ऑन द माउंटेन, आइसोलेशन से। क्लियर लाइट ऑफ डे, फैमिली पार्टीशन, मेमोरी। इन कस्टडी, लाइक उर्दू पोइट, डिक्लाइन ऑफ उर्दू। और फास्टिंग फीस्टिंग, इंडिया वर्सेस अमेरिका, उमाज स्टोरी। स्टाइल इनका क्या था, साइकोलॉजिकल डेप्थ थी, लिरिकल था। राजा राम मोहन राय की या फिर हम बात करें आर के नारायण की, इनकी थीम्स एक बार जरा कमेंट डाउन करो, अभी तक याद बची है नहीं बची है। शशि देशपांडे की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनका वर्क है डेट लॉन्ग साइलेंस, मिडिल क्लास वुमेन्स अवेकनिंग, द डार्क होल्ड्स नो टेरर, डोमेस्टिक फेमिनिस्ट। और थीम्स इनकी हैं वुमेन्स इशू, मैरिज, साइलेंस। ओके। नयनतारा सहगल की बात करें तो नेहरूज नीस, रिच लाइक अस, प्लान्स फॉर डिपार्चर, पॉलिटिकल नॉवल। और इनकी थीम्स रही हैं पॉलिटिक्स, फ्रीडम, इमरजेंसी पीरियड। ये नेहरू नीस से ही समझ जाओ कि इनका पॉलिटिक्स, फ्रीडम, इमरजेंसी पीरियड ये थीम्स रही होंगी। मतलब ये बस कनेक्ट करना आना चाहिए तुमको, समझ रहे हो। मिडनाइट चिल्ड्रन जनरेशन की अगर हम बात करें तो व्हेन इंडियन राइटिंग्स वेंट ग्लोबल, मिडनाइट चिल्ड्रंस जनरेशन जो है लाइक फ्रॉम 1980s टू 1990, इसमें तो उनको नहीं भूलना है सलमान रुश्दी को, जो कि गेम चेंजर रहे हैं मिडनाइट चिल्ड्रन से, जो बुकर ऑफ बुकर्स प्राइज जीते हैं। बॉर्न एट मिडनाइट ऑन अगस्त 15, 1947। सो मैजिकल रियलिज्म है, एल्गरी ऑफ इंडिया है, चटनीफिकेशन ऑफ हिस्ट्री है, शेम, द सेंटेनिक वर्सेस, द मोर्सला साई, द ग्राउंड बीनीथ हर वर्ल्ड। और इनका स्टाइल रहा है मैजिक रियलिज्म, लिंग्विस्टिक पायरोटेक्निक्स एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। ये तो नहीं भूलोगे, नहीं भूलना है। मिक्स ऑफ मैथ, हिस्ट्री, फैंटेसी। थीम्स की बात करें तो आइडेंटिटी, हाइब्रिडिटी, पोस्ट कॉलोनियल और हिस्ट्री। देन वी हैव विक्रम सेठ। हम पे इतना टाइम नहीं है कि हम बात कर करके बाद पढ़ाई करेंगे, है ना, तो इसलिए मैं डायरेक्टली चलती जा रही हूँ बस। विक्रम सेठ की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास है आ सुटेबल बॉय, द लॉन्गेस्ट सिंगल वॉल्यूम नॉवल इन इंग्लिश, डेट इज़ ऑफ 1349 पेजेस, और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में लिखी गई है। फाइंडिंग अ सुटेबल बॉय फॉर लता। The Golden Gate, which is novel in verse, sonnets, and equal music, versatile poetry and fiction travelogue also. अमिताभ घोष जानते ही होंगे, द हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट, द इबिस ट्रिलॉजी, जो इसमें उन्होंने लिखा है लाइक सी ऑफ पॉपी,
is River of Smoke, Flood of Fire about opium trade. The shadow lines like partition border, the glass palace Burma, Indian diaspora, the hungry tide सुंदरबंस के बारे में, the great derangement, climate change ऐसे, and research habit, historical depth. इनकी themes अगर बात करें हम तो climate, borders, diaspora, colonialism, ये सारी हम देख रहे हैं इनके वर्क से रिफ्लेक्ट हो रही है. तो अगर ऐसा तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन भी आ जाए जिसमें तुम्हें लगे कि अच्छा ये क्लाइमेट रिलेटेड है या फिर ये बॉर्डर्स रिलेटेड है, तो तुम्हारा कहीं ना कहीं अगर उसमें अमिताभ घोष दिख रहे हैं तो तुम्हारा दिमाग वहाँ जाना चाहिए. देन वी हैव शशि थरूर, जिनको तो भाई जानते ही होगे, जिन द ग्रेट इंडियन नॉवल, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना. मतलब ऐसा नहीं है कि अभी डिटेल में पढ़ लेना, बट हाँ कभी तो पढ़ना ही है ना, तब तुम वो इंटर रिलेट करोगे. शो बिजनेस, विटी, सटायरिकल, ऑल्सो अ पॉलिटिशियन एंड अ यूएन डिप्लोमेट. और अब तो पॉलिटिकल करियर मतलब आप जानते ही होगे, अगर और ज़्यादा देखना है तो आप देख सकते हो. रोनिंगटन मिस्ट्री, सच अ लॉन्ग जर्नी, अ फाइन बैलेंस, इमरजेंसी पीरियड, 4 लाइव्स इंटरसेक्टिंग, फैमिली मैटर्स, पारसी कम्युनिटी फोकस, टिकेंसियन स्टाइल. और थीम्स इसमें ज़्यादातर हैं मुंबई, ऑर्डिनरी लाइफ एंड सोशल इशू. 1990 से 2000 की बात करें बूम की, तो फिर उसमें हिस्ट्री राइटिंग, इंडियन राइटिंग बिकेम हॉट हो गई भाई. इसमें आई अरुंधति रॉय, जिनको मत भूलना. द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज अगेन अ बुकर प्राइज ऑफ 1997. रहल एनिस्था ट्विंस की बात हो रही है. केरला कास्ट फॉरवर्डन लव लॉस्ट दैट डिसाइड हु कैन बी लव, नॉन लीनियर narrative है, lush poetic language. It took 20 years to write second novel. The Ministry of Utmost Happiness, also activist, essayist. थीम्स इनकी है कास्ट, जेंडर, चाइल्डहुड और लॉस. देन वी हैव किरण देसाई, जानते हो ना, हाँ, अनीता देसाई की डॉटर, हुला ब्लू, इन द गोवा ऑर्चिड 1998, और द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006, अगेन इन्हें बुकर प्राइज हुआ. देन ये किससे रिलेटेड है, ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट से, जज आइसोलेटेड लाइफ एंड कलिम्पोंग नेपाली इंसर्जेंसी. देन वी हैव झुम्पा लहेरी, that interpretive of melodies, and again Pulitzer Prize 1999, short story, Indian diaspora in America. The namesake of 2003, like Gold Congolese identity crisis, unaccustomed earth, the lowland diasporic experience. Theme is like immigration, identity, cultural dislocation, family. Then we have Arvind Adiza. Arvind Adiza is like the white tiger, Booker Prize again. And the last man in tower, themes are class, corruption and new India. Then we have contemporary stars like from 2000 to present, like Chetan Bhagat. You have to remember 5 points someone, IIT students, for IIT students, one night at the call center, 2 state popular fiction influenced Bollywood heavily, simple accessible language. Then we have Raj Kamal Jha, The Blue Bedspread, experimental and dark. Anuja Chauhan, The Joya Factor, rom-coms and fun reads. Amish Tripathi, The Shiva Trilogy, mythological logi retelling, Ramchandra series. Then we have Indian English drama, in which we have Girish Karnad. इनको नहीं भूलना है, गिरीश कार्नड को, और रोड इन कन्नड़ा, ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश, तुगलक, हिस्टोरिकल पॉलिटिकल एलर्जी. देन वी हैव हयावादना, बेस्ड ऑन कथा सरित सागर, हॉर्स हेडेड मैन आइडेंटिटी थीम. ये हयावादना पढ़ लेना भाई. नगा मंडला, फोल्कलोर, फेमिनिस्ट, यवात्री, मिक्स ऑफ मिथ, हिस्ट्री, पावर. देखो इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हो जाती हैं जो हमारे सिलेबस में भी होती हैं, समझ रहे हो, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी होती हैं, समझ रहे हो. विजय तेंदुलकर, साइलेंस द कोर्ट इन द सेशन. बादल सिरकर की बात करें तो थर्ड थिएटर मूवमेंट एवं इंद्रजीत. महेश तट्टानी, मत भूलना, फर्स्ट इंडियन प्ले राइट इन इंग्लिश टू विन साहित्य अकेडमी. तारा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डांस लाइक अ मैन, जेंडर रोल्स. फाइनल सॉल्यूशन, कम्युनलिस्ट, 7 स्टेप्स अराउंड द फायर. थीम से जेंडर, सेक्सुअलिटी, फैमिली, सोशल इशूज़. दलित और ट्रैवल राइटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास है बामा, जिसमें है करुक्कू, ऑटोबायोग्राफी,
तमिल दलित क्रिश्चियन मूवमेंट और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और एजुकेशन के बाद बात हो रही है। महाश्वेता देवी 1084 मदर ऑफ 1084 1084 ट्राइबल अगेंस्ट right activist and social activist writer. So that's all from the Indian literature. Key important topic that you can't miss is like Salman Rushdie, Midnight Children, R.K. Narayan, Malgudi Days, Arundhati Roy, The God of Small Things, Mulk Raj Anand, Untouchable, Tagore, Kamala Das, अमिताभ घोष, नज़म इज़कल। ये तो सब याद ही रखने हैं, मतलब नहीं भूलने हैं। और कॉमन एग्ज़ाम क्वेश्चन अगर आते हैं तो इस टाइप से आते हैं। आई कैन शो यू, आई हैव कंपाइल्ड ऑल द थिंग्स फॉर यू। एंड देयर इज़ लिटरेरी मूवमेंट की थीम्स लाइक लिटरेरी मूवमेंट, सोशल रियलिज्म से कौन है आनंद है, मैजिक ऑफ रियलिज्म से कौन है रुशदी है। सो ये आपको याद रखनी है। जैसे मुल्क राज आनंद को याद कर सकते हो कि 3 बिग एम है, मार्क्स, R.K. नारायण, मालगुदी, M.S. हिडन, राजा राव मिस्टिक फिलोसफी बुक प्राइज विनर जो आपको याद ही रखने हैं, लाइक 1981 के रुशदी, रुंधति रॉय, किरण देसाई, अरविंद अडिका, वाइट टाइगर के लिए। 3 वेव्स जो हैं जो आपको याद रखनी है, और दैट इज़ लाइक 1930s से द बिग 3 प्लस फाइनल्स। जब मैं बिग 3 बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में उन 3 का नाम आना चाहिए तो पढ़ने का फ़ायदा है, वरना पढ़ने का फ़ायदा है नहीं। आ रहा है समझ में? 1980s की बात करें तो रुशदी जनरेशन, और 2000 प्रेजेंट की बात करें तो फिर डाइवर्स वॉइसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर द इंडियन लिटरेचर फॉर योर एग्ज़ाम. These keywords are sufficient for this and you can revise it. Like आप अगर साइड में भी ये फ़ोन रख के चला के सुनते रहो ना, तब भी आपको चीज़ें याद हो जाएं। बस दिक्कत ये है आप करना चाहो तब, है ना? I may sound rude, but that's the fact, you know. So if you like this, you can subscribe to the channel and connect with us for more topics. And if you want to have the keywords and knowledge for any topic related to your paper 1 or paper 2, you can comment down. I will share it. Okay, so best of luck.